Good morning, student. In this lecture, we will cover a technique of crossing or in plant breeding that is known as the emasculation. So, what is meaning of emasculation means removal of anthers from the dehiscence from a hermaphrodite or bisexual flower. Okay, they are flowers what are bisexual flowers which have both male and female part in them, and they are how we have to remove the anthers. I think you know what is anther and the stigma and style. What is stigma, style and ovary? What is anther and filament? Anther and filament was known as the male part of the flower. So emasculation is relevant to bisexual flowers, and in monoecious plants the male and female flowers are separate but present in the same plant, such as in castor and maize. And in castor, male and female are present in the same inflorescence. I think you have done in the botany. Inflorescence means the this is the arrangement of flowers on the the petioles of the flower plant, and in such case male flowers are removed from the inflorescence, and in maize male and female flowers are in separate inflorescence, and in such cases male inflorescence means tassels are removed. So this is the emasculation. So in dioecious species, male and female flowers are present on the different plants. Okay, in dioecious, that is monoecious and dioecious means different plants. For example, papaya, date, palm. In such cases male plants are removed. That is the emasculation. And third one is there are two main why we need to do the emasculation. Emasculation is first to prevent the self pollination, and second to prepare the female parent for crossing or hybridization with the desired male parent. So in the plant breeding, what we have to do, we are doing the selfing or crossing of different parents in a controlled environment. So do all this, we have to stop the self pollination, and also to prepare the female parents for crossing or hybridization with the desired male parent. So we have to do the emasculation. This is the reason. So what are the different methods for plant breeders for emasculation? The mainly depend on three factors: size of flower, number of seeds, and the quantity of hybrid seeds requires. These are the three main requirements. And the best emasculation method is one which ensure removal of all anthers without causing injury to the female. Gynoecium मतलब स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी को हमने क्या करना है, हर्ट नहीं करना. उसमें जो फिलामेंट और एंथर, फिलामेंट से एंथर को ही हमने उठाना है. दैट इज़ द बेस्ट emasculation. And then it is necessary to cover emasculation flower to prevent natural आउटक्रॉसिंग विद द अनडिजायर्ड प्लांट. तो उसकी हमने बैगिंग कर देनी है ताकि जो है बाहर से कोई भी जो पोलन ग्रेन्स हैं स्टिग्मा पे आके ना गिरे और वहाँ पे क्रॉसिंग ओवर ना हो. दोज फ्लावर्स विच आर एक्सपेक्टेड टू ओपन द नेक्स्ट डे आर सिलेक्टेड फॉर emasculation. ठीक है, जो चॉइस होनी चाहिए दैट इज़ एक्सपेक्टेड टू ओपन द नेक्स्ट डे वाले फ्लावर्स ही होने चाहिए. जनरली जो emasculation है डन इन द आफ्टरनून 4 to 6 PM. हाउएवर इट डिफर्स फ्रॉम द क्रॉप टू क्रॉप. सो मेथड ऑफ emasculation क्या है? हैंड से कर सकते हैं, हॉट वाटर से भी हो सकती है, कोल्ड वाटर से हो सकती है, अल्कोहल से हो सकती है, सक्शन मेथड से, केमिकल मेथड से, इवन द मेयर स्टरलिटी मेथड इज ऑल्सो देयर. सो व्हाट इज़ द हैंड emasculation? इसमें क्या करेंगे हम कि जो क्रॉप्स है विच आर रिलेटिवली लार्ज फ्लावर्स, जिनके थोड़े फ्लावर्स बड़े होते हैं, जैसे कॉटन हो गए, ओकरा हो गए, काउपी हो गया, पी हो गया, ब्लैक ग्राम हो गया, ग्रीन ग्राम हो गया, इनके जो फ्लावर्स होते हैं थोड़े बड़े होते हैं. तो इसको हमने क्या करना है, टू यूज इन क्रॉप लाइक वीट, वार्ले, ठीक है, ट्राइटिकेट, ओट्स, rapeseeds, mustard, brinjal, tomato, potato, and several other crops. And anthrax carefully removed with the help of forceps without multiplication of without harming the gynoecious मतलब female part. So the exact procedure of emasculation varies from crop to crop.
मतलब हमने जो विजुअली देखनी है, विजुअली हम एंथर को देखकर उनको हम अगर एंथर हमें दिख रहा है प्रॉपर तो हम उसको रिमूव कर सकते हैं। हॉट वाटर से हमने कैसे करना है, हॉट वाटर जो है ये उन स्पीसीज़ में होता है वेयर फ्लावर साइज इज़ वेरी स्मॉल और नंबर ऑफ फ्लावर्स इन एन फ्लोरेंस आर टू मैनी, बहुत ज़्यादा फ्लावर्स हैं और उनका साइज़ भी छोटा है, तो उनके लिए हम जो है इमस्कुलेशन कैसे करनी है, हॉट वाटर से। ऐसे फ्लावर किस में होते हैं, सॉर्गम चेरी में होते हैं, पैडी में होते हैं, ग्रासेस में होते हैं। सो ओवरी जो होती है वो लेस सेंसिटिव टू टेम्परेचर फ्लक्चुएशन दैन द पोलन ग्रेन्स, हैंस हॉट वाटर क्या करता है, वो किल्स को पोलन ग्रेन्स को किल कर देगा और जो ओवरी है या फीमेल पार्ट है उसको नहीं किल करेगा विदाउट कॉजिंग एनी डैमेज टू द गाइनोशियम, क्योंकि वो थोड़ी जो फीमेल पार्ट है या ये क्या है लेस सेंसिटिव है, लेकिन जो एंथर है वो ज़्यादा सेंसिटिव है। सो जैसे थर्मोस बॉटल्स ऑफ अप्रोप्रिएट साइज विद बिग माउथ आर यूज्ड फॉर दिस पर्पस, इसके लिए हम जो इन्फ्लोरेसेंस है उसको इमर्ज कर देते हैं हॉट वाटर में एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, दैट डिपेंड्स अपॉन द टाइम टू स्पीशीज। तो ये टेबल आपको याद करना होगा। सॉर्गम में 47 से 48 टेम्परेचर हम नॉर्मली 42 से 52 डिग्री की रेंज में रखेंगे। राइस, ब्रोम ग्रास, फिंगर मिलेट्स, पर्ल मिलेट्स के लिए ना ये टेम्परेचर रेंज जो है 42 से 52 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो टाइम का एक्सपोजर जो है वो मिनट्स में हमने देना है, वो है 1 मिनट से लेकर 10 मिनट के बीच में। सबसे ज़्यादा सॉर्गम को देना पड़ता है और उसके बाद राइस को, और जो स्मूथ फॉर्म ग्रास है उसको कम देना पड़ता है। सो टाइमिंग एक्सपोजर जो है उसको हमने याद रखना है। तो हॉट वाटर में डिप करेंगे तो एंथर अपने आप ही क्या हो जाएंगे, वो एंथर अपने आप डिलीट हो जाएंगे। सो नेक्स्ट इज़ द इमस्कुलेशन ऑफ कोल्ड वाटर। उल्टा भी कर सकते हैं, जैसे वीट राइस जो हैं इन क्रॉप्स में हम कोल्ड वाटर ट्रीटमेंट से भी इनके जो एंथर्स हैं उनकी जो पोलन ग्रेन्स हैं उनको हम किल कर सकते हैं, तो इससे विदाउट कॉजिंग फीमेल ऑर्गन को और एनी डैमेज। सो फॉर एग्जांपल वीट जो है उसको हमने कोल्ड एक्सपोजर देना है कितनी डिग्री पे, 0 से लेकर 2 डिग्री सेंटीग्रेड 15 to 24 आवर्स इफेक्टिव फॉर किलिंग। सो विच इज़ राइस कोल्ड एक्सपोजर, इसको हम बोलते हैं जो किलिंग हम करते हैं तो जो 0 से लेकर 6 डिग्री हम राइस के लिए कर सकते हैं, उससे पोलन उसके किल हो जाते हैं। अल्कोहल के साथ भी हो सकती है अल्कोहल, लेकिन हमने लेनी है 57% अल्कोहल। 57% अल्कोहल को अगर 10 सेकेंड्स के लिए हम एक्सपोजर देंगे, उसके बाद ऑर्डिनरी वाटर वॉश और जो रूम टेम्परेचर वाला पानी है, जो नॉर्मल पानी है, उससे अगर हम वॉशिंग करेंगे तो तभी भी इन जो है इमस्कुलेशन हो जाएगी। और ये मोस्टली स्वीट पोटैटो में ज़्यादा सक्सेसफुल देखी गई है और इससे क्या है गाइनोशियम पार्ट को नहीं हार्म होता। देन इज़ द सक्शन मेथड। सक्शन मेथड में क्या होता है, इसमें ये राइस में मोस्टली होती है। सक्शन में हमने एंथर को सक्शन से, ठीक है, सक्शन पंप आता है ना, उससे हमने रिमूव कर लेने सारे जो डिज़ायर्ड वैक्यूम पंप है उसमें हमने उन सारे को जैसे एंथर से उनको सक कर लेना है। ये होता है मोस्टली वैक्यूम क्लीनर है, जैसे वैक्यूम क्लीनर की वजह से काम करता है। सो लेकिन इसको इतनी ज़्यादा, दिस इज़ नॉट अ प्रेवलेंट मेथड और पॉपुलर मेथड यू कैन से। केमिकल से भी हम कर सकते हैं। केमिकल से हमने कैसे करना है, जो मेल फर्टिलिटी के लिए बहुत सारे जो है केमिकल्स आते हैं उनको हम गमीटोसिटिक साइड्स बोलते हैं, गमीटोसाइड्स बोलते हैं। ये रैपिड मेथड ऑफ मेल स्टेरिलिटी के लिए है। एक्वा सॉल्यूशन ऑफ केमिकल इज स्प्रे ऑन द कोल्ड क्रॉप ड्यूरिंग द फ्लावर इनिशिएशन और एंथ्रासिस। तो केमिकल्स के नाम याद करने पड़ेंगे, सोडियम मिथाइल आर्सिनेट, जिंक मिथाइल आर्सिनेट, नेप्थलीन एस्टिक एसिड, जिबलिन्स, एथरल एंड मैलिक हाइड्रोजाइड एंड FW450। ये क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दीज केमिकल्स वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप। सो मेन ड्रॉबैक ऑफ दिस मेथड इज़ दैट कि इससे ये शॉर्ट लिव्ड होते हैं, तो अगर हम केमिकल को दोबारा यूज़ करेंगे करना पड़ता है तो इसके लिए प्रोटेक्शन भी कम हो जाएगी। और एक इसमें एक और रीज़न हो सकता है, यहाँ पे नहीं लिखा, कि जो अगर ये एंथर को अफेक्ट करेगा या मेल पार्ट को अफेक्ट कर सकता है, तो ये गाइनोशियम या फीमेल पार्ट को भी ज़रूर अफेक्ट करेगा। तो इसलिए
दिस इज़ द यू कैन सी ड्रॉबैक ऑफ द केमिकल मेथड। अब मेल स्टरिलिटी मेथड क्या होता है? मेल स्टरिलिटी मेथड है कि ये नेचुरल मेथड है इमस्कुलेशन का। इसमें हमें इमस्कुलेशन करनी नहीं पड़ेगी। नो नीड ऑफ दोज वेयर मेल स्टरिलिटी सिस्टम ऑपरेट्स। द मेल स्टरिलिटी इज ऑफ 3 टाइप्स। एक तो है जेनेटिक मेल स्टरिलिटी है, एक साइटोप्लाज्मिक मेल स्टरिलिटी है और एक साइटोप्लाज्मिक जेनिक मेल स्टरिलिटी है। तो जो साइटोप्लाज्मिक जेनिक मेल स्टरिलिटी है उसमें क्या है कि मेल स्टरिलिटी इज प्रेफर्ड इन मेजॉरिटी ऑफ क्रॉप्स। थर्ड वन जो है तो एक्सेप्ट फोरेज क्रॉप्स वेयर साइटोप्लाज्मिक, फॉरेज क्रॉप्स में साइटोप्लाज्मिक मेल स्टरिलिटी यूज होती है बिकॉज देर इज नो नीड ऑफ logging 50% fertile plants which is required in genic male sterility. So cytoplasmic male sterility can be used in those crops where seed is not economic products such as forage crops, sugarcane, potato. And out of 7 method discuss करते the method hand emasculation, hot water emasculation, the main sterility methods. उसमें भी genetic emasculation are in common use and other ones are not so prevalent or you can say more appreciated by the cross breeders or plant breeders. So this is for today's only. Anything is not clear, feel free to talk to me. Thank you.